ठीक। सो आप सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਧਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5-7 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 3 ਲੱਗ ਅੱਖਰ ਤੇ 10 ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਧਕ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਬੋਲਣੀ, ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼, ਤ੍ਰ, ਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਐਲਫਾਬੈਟ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਫॉर ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਕ, ਟਿੱਪੀ ਔਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਕਿ ਸਰ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਸਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਸਨ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰੀ ਕਰੀਏ
ਹੋਮਵਰਕ 2 ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਮਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ co-host ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आप जी अपनी वीडियो ऑन करके और माइक अनम्यूट करके ते कविता स्टार्ट कर सकते हो, फिर ਅਸੀਂ क्लास शुरू करांगे। निर्मोलक सिंह। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम निर्मोलक सिंह है। आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਨਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੋ। मैं सबकी कोई मती नहीं, तुझे कुछ के सोच विचार करो। मैं मां बोली पंजाबी हां, मेरा आदर ते सत्कार करो। सानू गोदी विच खिडाया सी, लोरी गा लाड लटाया सी, रोंदियां नू चुप कराया सी। तुझे मेरा भी प्रचार करो। मैं मां बोली पंजाबी हां, मेरा आदर ते सत्कार करो। बोलो तुसी होर भाषावां अपनी, पर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। मैं मां बोली पंजाबी हां, मेरा आदर ते सत्कार करो। मैं मां बोली पंजाबी हां, मेरा आदर ते सत्कार करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। लाजवाब। आओ इतनी हुंगारे भरी कविता ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਐਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਨੀਤ ਕੌਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ? ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਧਕ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਦ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਬਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਔਰ ਬਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿੰਦੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿੱਪੀ ਚਾਂਦ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲਗ ਅੱਖਰ। ਲਗ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਧਕ। ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਿੱਪੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿੱਚ लगेगी। टिप्पी, टिप्पी के प्रयोग,
टिप्पी के प्रयोग। टिप्पी कहाँ कहाँ पे लगेगी? देखो बार बार मैं दसना, कितनी मात्रावां ने? अपनी फिंगर्स खोल के दसो। 10 मात्रा। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 5 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 4 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 6 ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਿੰਦੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, 6 ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ 4 ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 4 ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ 4 ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, देखते हैं। टिप्पी नाल 4 मात्रावां। पहली है मुक्ता। मुक्ता यानी जिस शब्द नु कोई मात्रा ना लगी होए उधर टिप्पी लग जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी नाल नाल करा देना। कम, कम कक्के नु कोई मात्रा नहीं सी, कक्का मुक्ता सी ते कक्के नु की लग गई? टिप्पी लग गई। राइट, कम। इस तो इलावा असीं करांगे संत, अंब। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ इधर संत सस्से ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ नहीं सी, यानी ये मुक्ता सी ते इस ਨੂੰ ਲੱਗ गई टिप्पी। ठीक है जी, समझ आई कि टिप्पी किथे किथे लगी है? मुक्ता ਨੂੰ। दूसरी मात्रा देखते हैं। दूसरी मात्रा ਹੁੰਦੀ है सिहारी ਨੂੰ। सिहारी ਨੂੰ टिप्पी लगती है। सिहारी ਹੁੰਦੀ है छोटी ई की मात्रा, हमें पता है ना। सिहारी, सिहारी मतलब छोटी ई की मात्रा। सिहारी दे नाल भी टिप्पी आएगी। ये याद रखने वाली चीज है। 4 मात्रावां सिर्फ याद रखनी है, बाकियां दे नाल बिंदी आएगी। सिहारी दे नाल की आएगी? टिप्पी। जिवें मैं लिख रहा चिंता, च नु सिहारी है, ऊपर नेजल साउंड है, तो इस तरह टिप्पी आ जाएगी चिंता। ठीक है, विंगा। जे मैं लिखा विंगा, विंगा यानी टेढ़ा, टेढ़ा। विंगा हुंदा टेढ़ा। चिंता, इससे सिहारी लगी हुई है, छोटी ई दी मात्रा। सिहारी मतलब छोटी ई दी मात्रा। ठीक है, और एक और चीज दसा, जे मैं लिखना है बिंदी, जे मैं लिखना है बिंदी तो इधर टिप्पी आएगी। देखो कितना अजीब जिहा रूल है। बिंदी नु लिखन लई टिप्पी लगेगी क्योंकि बब्बे नु सिहारी आ गई। ठीक है, हींग जो हम खाते हैं, हींग, उसनु पंजाबी कहांगे हींग, यानी छोटी दी मात्रा नाल फिर टिप्पी आ गई। तीसरी देखांगे असी औंकड़। औंकड़, औंकड़ की हुंदी है छोटे ऊ दी मात्रा। राइट, छोटे ऊ दी मात्रा। छोटे ऊ दी मात्रा इस तरह पैंदी है, पंजाबी विच करांगे ना असी। ठीक है, छोटे ऊ दी मात्रा नाल भी की आएगी? टिप्पी आएगी। मुंडा, मुंडा मतलब लड़का। मुंडा, देखो म नु छोटा ऊ लग गया ते ऊपर नेजल साउंड आ रही थी, बिंदी नहीं आएगी, ऊपर आएगी टिप्पी। मुंडा। धुंध, कितनी धुंध हो रही है, धुंध, टिप्पी आ गई। इस तरह ही जेड़े भी होर अखर असीं बनांदे जाएंगे उस विच टिप्पी आंदी जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हुणे तुहानू टेस्ट होएगा, उस विच पुछांगा मैं की सीखिया। उस तो बाद आंदा दुलैंकड़। दुलैंकड़ विच भी टिप्पी आएगी। इस तो इलावा 6 मात्रावां जेड़ी ने उस विच की आएगी? बिंदी। दुलैंकड़े, दुलैंकड़े यानी बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, जैसे आ गई आवाज गूंज रही है, गूंज, आवाज गूंज रही है। ठीक है, इस तो इलावा भी साडे कोल बड़े सारे वर्ड्स ने, जिवें तेरे मुंह ते की लग्या है? मुंह, मुंह। देखो बस ये 4 मात्रावां असीं याद करनी है जिस नाल टिप्पी दा प्रयोग होएगा। मुक्ता, सिहारी, औंकड़, दुलैंकड़। औंकड़ दुलैंकड़ ते याद करना कितना सौखा है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में टिप्पी आएगी। मुक्ता यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं, उसमें भी टिप्पी आएगी। बस एक को मात्रा याद रखनी है, छोटी ई, छोटी ई याद रखनी है। इस तो इलावा बड़ी ई, ए की मात्रा, ए की मात्रा, कन्ना, इन्हां सारे नाल होड़ा, कनोड़ा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, इन्हां सारे नाल बिंदी दा प्रयोग। बस टिप्पी दे याद कर दो, नोट डाउन कर लें तुसी। जल्दी जल्दी नोट डाउन करांगे, हरी अप।
और ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਇਟਸ ਬਦਲਾ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ और ये हुआ मेरा बदला पूरा ठीक है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ ਪਰ ਕਈ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ चैनल ਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ खूब प्रैक्टिस करनी है इस एक दिन में सारे लेसन्स ਨੂੰ गो थ्रू करना है कैंप ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖ ਲੈ आओ ਹੁਣ बिंदी देखिए बिंदी बिंदी के प्रयोग बिंदी के प्रयोग दो दो शब्द ही लिखवाऊंगा क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है पहला उधर सिहारी आई सी तो इधर आ जाएगी बिहारी यानी बड़ी की मात्रा लिखांगा नहीं तो मैं सिर्फ मात्रा बना रहा बाकी जो नोट्स पूरे करने हैं तो फिर आप जी लेसन्स पे जा सकते हो ध्यान नाल देख सकते हो बड़ी की मात्रा के साथ क्या आती है बिंदी हमेशा बिंदी आती है ठीक है नींद मैनू नींद आ रही है नींद आ रही है नींद तो नींद आ रही है नहीं अच्छा नहीं भी लिख लेंगे हैं फिर सारे कह रहे हैं नहीं नहीं हाहे नु बड़ी दी मात्रा है नींद नन्ने नु बड़ी दी मात्रा ते नाल की आ गया बिंदी ठीक है पहली होगी दूसरी कन्ना कन्ना नाल भी बिंदी आंदी है कन्ना नाल भी की आंदी है बिंदी है जिवें कां कां की हुंदा कौआ कां ठीक है खेडां खेडां ठीक है खेडां यानी गेम्स खेडां यानी गेम्स ठीक है टिकटां जिधर जिधर कन्ना आंदा जाएगा ਅਸੀਂ उधर उधर बिंदी लगाते जाएंगे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ टिप्पी दी होगी एक मुक्ता यानी जिधर कोई मात्रा नहीं एक हो गया छोटा ऊ बड़ा ऊ और एक रह गई वो छोटी ई बाकी 6 इधर लगनगियां कन्ना हो गया बड़ी ई हो गई हुन ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगली मात्रा होड़ा कनोड़ा पहले होड़ा कनोड़ा कर लेंगे हैं फिर उस तो बाद अगली मात्रावां देखेंगे जो कि है लां दुलां ठीक है होड़ा होड़ा यानी ओ की मात्रा ठीक है ओ की मात्रा और कनौड़ा मतलब ओ की मात्रा ते होड़ा तो ਅਸੀਂ देख लेंदे हैं बैठ बैठ के आजकल घरां विच की निकली जा रही है तोंद 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 तो ਅਸੀਂ बना सकते हैं गोंद ओ दी मात्रा आ गई ਜਦੋਂ ओ दी मात्रा आई ते नाल बिंदी लग गई सरों सरों की हुंदा पता ਤੁਹਾਨੂੰ जिसको हिंदी में सरसों कहते हैं उसको पंजाबी में सरों कह लेंदे ਜਿਹੜੇ मैं नाल नाल वोकैबुलरी दसदा नोट कर लिया करो सरों दे ब्रैकेट लिख लिया करो सरसों ठीक है कोई रोंदा ते नहीं है रोंदा रोता मतलब रोंदा चौथा करांगे ਅਸੀਂ कनौड़ा कनौड़ा यानी ओ की मात्रा ठीक है ओ की मात्रा ओ की मात्रा थी होड़ा ओ की मात्रा है कनौड़ा ठीक है ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਲੈ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ लौंग ठीक है अगला देखते हैं अगली है लां
ला हुंदी है ए की मात्रा, ठीक है। जिवें ਅਸੀਂ लिखिए गेंद, गेंद, ला हुंदी है ए दी मात्रा और दुला हुंदी है दो लावां यानी ए दी मात्रा, ठीक है। तू बड़ा सतवें आसमान ते उड़ रहे हैं, सतवें। ਤੁਸੀਂ देखोगे जिधर जिधर ए दी मात्रा आई है नाल ही बिंदी आ गई है अगर नेजल साउंड दे रही है ते। उस तो बाद आती है ए दी मात्रा। ए दी मात्रा का मतलब ਹੁੰਦਾ है ਦੁਲਾਵਾਂ। इसਨੂੰ पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ प्रोनाउंस ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁਲਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ, ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ बैंक जा रहे हैं, बैंक, ठीक है। मैं जू ਵਿੱਚ जाके ਗੈਂਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੈਂਡਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਆਈ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਿੰਦੀ। ए ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਔਰ ਐ ਦੀ ਮਾਤਰਾ यानी ਲਾਵਾਂ और ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ बिंदी आएगी। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? नहीं तो मैं बदला लवा। हुन होएगा टेस्ट। हुन आप जी दा होएगा टेस्ट। ते टेस्ट विच देखांगा मैं, तुसी लगानी है। मैं अखर शब्द लिखदा जाऊंगा, तुसी मैनू दसना है किस किस विच बिंदी आएगी और किस किस विच टिप्पी आएगी, उन्हें तुसी दसना है, ठीक है। चलो इट्स बदला टाइम। करदा जी, इरेज करदा। आज इस करके जल्दी करा रहे हैं क्योंकि मैनू फिर डाउट्स भी लेने, क्योंकि कल छुट्टी है। अच्छा मेरी स्क्रीन ते जेडे आ रहे हैं इस वक्त, मैं उन्होंने कहांगा मैनू टाइम दसन, क्योंकि मैं स्क्रीन नो टच करांगा तो मेरी स्पॉटलाइट हट जाएगी। मेरी स्क्रीन ते आ रहे हैं कायशा सैनी, कायशा सैनी। तुसी मैनू सुन सकते हो? एक कॉपी विच लिख के टाइम मैनू वड्डा वड्डा दिखाया जाए की और। चलो असी इन्नी देर करते हैं टेस्ट, तुसी नाल नाल बिंदी और टिप्पी पांदे जाओ, ठीक है। मैं लिखिया शब्द पन्ना, गोंद, ग्रंथ, किन्ना, कुंडी, तीन बार आ जाने लग रहा है, तीन। तुसी नाल नाले शब्द लिखते जाओ। अच्छा तुसी टाइम दिखा रहे होगे 12:20। थैंक यू जी, बहुत शुक्र है वाहिगुरु जी का बड़ा। खूंडी, घरों, गावां, डंडे, केंद्र,
और मैं देखा केड़े केड़े लिख सकते हैं ਅਸੀਂ शब्द। सिंह, फौजियां, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਟਿੱਪੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕਣਾ, घोड़ा हो गया, कन्ना हो गया, कन्ना हो गया, ला ला हो गया, दुलावन, दुलाव, मैंबर, उस तो बाद रही है पींग, और की रह गया, उंगली, क्यों। चलो जी, पूरा बोर्ड भर दिता है। हुण तुसी नाल नाल दसना है। अच्छा, कल एक नोट लिखवाया सी मैं कि ऊड़े दे नाल हमेशा बिंदी दा ही प्रयोग हुंदा है। कल लिखवाया सी ये नोट, याद है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਊੜਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ हैंड रेज कर लेगा। ठीक है, चैट देखो एक बार, मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं इस वक्त। सतलीन कौर मक्कड़, सतलीन कौर बेटा चैट्स एनेबल ने, चैट भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। सिमनीत कौर तुसी क्लास विच बैठे होने, सिमनीत कौर जेडे होस्ट ने क्लास विच है उन्हें। 12:28 तुसी मैनू 32 थोड़ी थोड़ी देर तक टाइम भी दस रहे हैं, तो बड़े अच्छे बच्चे ने। थैंक यू, मैं देख लिया 12:32 हो रहे। चलो जी, तुसी यस और नो इस तरह कर देना। ठीक है, चैट से एनेबल तो है नहीं। मैं पूछांगा टिप्पी यस या नो, बिंदी यस या नो। ओके, इस तरह करांगे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪੰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲਿਖ ਲਓ ਪੇਜ, ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਨਾ ਪੱਪੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बिंदी आनी चाहिए है, टिप्पी आनी चाहिए है। देखो कंफ्यूज हो गए ना हुणे, बिंदी आएगी। ਅਸੀਂ देखो टिप्पी दी चार मात्रावां कीतियां। टिप्पी आंदी है छोटी ई नू,
ਛੋਟੇ ਊ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਊ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, इधर कोई मात्रा लगी है, पप्पे ते कोई मात्रा है, तो की आना चाहिए? टिप्पी, टिप्पी आएगी, इधर बिंदी नहीं आएगी, तो असि इस तरह लगाएंगे पन्ना, पन्ना याद रखांगे। जिधर कोई मात्रा नहीं है उधर टिप्पी आंदी है, जिधर छोटी ई दी मात्रा है उधर भी टिप्पी आंदी है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है उधर भी टिप्पी ही आंदी है। गोंद, ए शब्द लिखे मैंने गोंद, हुणे ते गोद हो गया, पर जे मैं लिखना गोंद ते ग नू केड़ी मात्रा लगांगा? टिप्पी, टिप्पी लगांगा ग नू। नहीं, बिंदी लगांगा। देखो ओ दी मात्रा है, ओ दी मात्रा गोंद, नेजल साउंड आ किस तरीके गग्गे ते गग्गे नू लगी है ओ दी मात्रा, ओ दी मात्रा दे नाल टिप्पी आंदी है कदी? नहीं, ते इधर की आएगी? बिंदी, गोंद। देखो कितना सौखा हो गया। असि सिर्फ 4 मात्रावां याद रखी हैं, सिहारी छोटी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और बिना मात्रा, इन्हां नू टिप्पी आएगी, बाकी सारियां नू बिंदी लगा दो, बिंदास। देखो ए मैं लिखना चाह रहा सी, हुणे ते लिखिया गरथ, मैं लिखना है ग्रंथ, ग्रंथ। पहले देखांगे नेजल साउंड किस ते आ रही है, र ते आ रही है, ग्रंथ, र ते आ रही है ना, ते र नू बिंदी लगेगी, बिंदी लग सकती है? नहीं, क्योंकि इधर कोई मात्रा ही नहीं लगी र नू, ते की लगेगी? टिप्पी, ग्रंथ। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो अगला देखते हैं। ए मैं लिखना किन्ना, किन्ना, तेनू पानी चाहिए, किन्ना पानी पिएगा, किन्ना, ते कक्के ते आ रही है साउंड, कक्के ने लगी है छोटी ई, ते छोटी ई ते की लगेगा? टिप्पी या बिंदी? टिप्पी, वेरी गुड, टिप्पी। इधर सियारी दे नाल ही टिप्पी लग जाएगी। किन्ना, किन्ना पानी पिएगा, किन्ना मतलब कितना, ब्रैकेट में लिख सकते हो कितना, कितना नु पंजाबी विच कहंदे किन्ना। ए तुसी देख रहे हो मैं लिखिया कुड्डी, कुड्डी ते कोई वर्ड नहीं हुंदा, मैं लिखना चाह रहा कुंडी, कुंडी, कुंडी विच नेजल साउंड, नक विच आवाज किस अखर ते आ रही है? कक्का और डड्डा दोने, कुंडी, क ते आ रही है कुंडी, कुंडी, ते क नु लगी है छोटे ऊ दी मात्रा, औंकड़ लग्या ते की आएगी? बिंदी आएगी। छोटे ऊ नाल बिंदी आंदी है? नहीं, ते की आएगी? टिप्पी, छोटे और बड़े ऊ नाल टिप्पी आंदी है, कुंडी। ए मैं लिखना है घरों, सामान लेके आ अपने घरों, घरों यानी घर से, घरों, ते नेजल साउंड आ रही है र ते, र ते आ रही है नेजल साउंड घरों, ते र नु की लग्या ओ, होड़ा, ते होड़े नाल की आंदी है? बिंदी आंदी है ना, ते इधर आ जाएगी बिंदी, घरों, घरों। क्लियर होया? घरों। अगला देखांगे। ए मैं लिखिया खूंडी, खूंडी पता की हुंदा है? खूंडी हुंदी जेहड़ी बजुर्ग नहीं लकड़ी पकड़ते जिस विच अगे यू जा बनया हुंदा है इस तरह हैंडल, उसमें कहंदे खूंडी, स्टिक। खूंडी किस ते आ रही है साउंड? डड्डे ते आ रही है खखे ते? खखे ते, खूंडी, खूंडी, ते खूंडी विच खखे नु लगी है दुलैंकड़, दुलैंकड़ नु की लगदी है? टिप्पी लगदी है या नहीं? टिप्पी लगदी है, वेरी गुड, ते खूंडी नु टिप्पी लग जाएगी, खूंडी। समझ आई? अगला देखते हैं। ए मैं लिखिया, तुसी पढ़ोगे की लिखा? डडे, डडे नहीं मैं लिखना डंडे, डंडे, ते पहले ड नु आवाज आ रही है डन, डंडे, ते ड नु ते पहले वाले नु कोई मात्रा नहीं है, जो मात्रा ना हो तो की लगदी है? मुक्ता नु की लगदा है? टिप्पी, डंडे। ए मैं लिखिया गावां, गावां। अच्छा ये दो तरीके नाल शब्द बन सकता है, जे ते मैं लिखिया गावां, गावां दा मतलब होता है मैं गाऊं, अगर मैं कह रहा गावां, गावां दा मतलब हो जाएगा काउज, बड़ी सारी काउज, ते असी इधर काउज वाला कर लेंदे आ, गावां, दोनों ते साउंड आ रही है, गावां, किन्नियां गावां है? गावां,
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾउंड आ रही है गावां। किन्नियां क गावां है? और अगर मैं सिर्फ गाण वाला गाना कह रहा तो फिर गग्गे तो हट जाएगी, गावां मैं गावां गाना ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੂਰਲ ਕਾਉਸ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਕਾਉਸ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ। ਡੂੰਘਾ मतलब गहरा। डूंघा ਤੇ किस ਤੇ आ रही है नेजल साउंड? फर्स्ट अल्फाबेट डड्डे ते आ रही है, सेकंड ते आ रही है, 1 2 करके दिखा दो। डड्डे ते आ रही है तो 1 करना है, कग्गे ते आ रही है तो 2 करना है। डूंघा किस ते आ रही है साउंड नेजल? फर्स्ट ਤੇ ਡੂੰਘਾ। ਡੂੰਘ ਡੂੰਘਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾउंड है तो वर्ड बोल लो डूंघा। जिस ते नोज वाइब्रेट हो जाएगी मतलब उस ते साउंड आ रही है डू। देखो डू घा बोलते नहीं नोज वाइब्रेट हो रही घा, पर डू बोलते हो रही है वाइब्रेट। राइट, दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस टू चेक। डूंघा ते डूंघा नु लग्या दुलैंकड़े। दुलैंकड़े नु की आंदी है? टिप्पी आंदी है। टिप्पी, वेरी गुड। ए मैं लिखा केंद्र। केंद्र मतलब हुंदा सेंटर। सेंटर वोकैबुलरी विच नाल नाल ब्रैकेट विच लिखते रहो मीनिंग सेंटर। सेंटर पॉइंट नु कहंदे केंद्र बिंदु। केंद्र किस ते आ पहले नेजल साउंड दसो। तीन तीन अखर ने कक्का दद्दा रारा। कक्का 1 दद्दा 2 रारा 3। तुसी मैंने दसो किस ते नेजल साउंड आ रही है? बिंदी टिप्पी किस नु लगेगी? केंद्र बोल के देखो नोज पकड़ के, फिर 1 2 3 करना है तुसी। 1 2 या 3। केंद्र केंद्र 2 ते किस किस नु आ रही है? पता नहीं 2 ते किवें आ सकती है? दर द बोल दे, देखो द बोलो द दर। दर बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हो रही। केन जिवें मैं बोल रहा केंद्र ते कक्के ते आ रही है केंद्र। ते कक्के नु की लगेगी? कक्के नु लगी हुई है लाम। लाम नु की लगदी है बिंदी या टिप्पी? 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। बिंदी लगेगी या टिप्पी? लाम नु की लगदी है बच्चे? एक ही मात्रा के साथ टिप्पी आती है कभी? 2 कैसे कर दिया आपने? यानी रूल सही से नहीं पढ़ा हुआ। बिंदी एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगती है। इस तो बाद मैं लिखा है जिवें मेरा नाम है गगनदीप सिंह। सिंह ते सस्से नु आ रही नेजल साउंड सिंह, ते सस्से नु लगी है सियारी ते नाल की लगावां? 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। की लगावां? 1 2 कर दो। छोटी की मात्रा के साथ क्या आती है? वेरी गुड, वी फॉर विक्ट्री। टिप्पी टिप्पी सिंह। ये मैं शब्द लिखे रहन दियांगा ताकि तुसी डाउट्स भी पूछ सको। अगे बढ़ते हैं। फौजियां 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 मतलब मिलिट्री मैन, बड़े सारे फौजी, प्लूरल है फौजियां। आ ते की लगा? फौजियां। आ ते आ दी मात्रा लगी है एड़े ते कन्ने दे नाल की आंदी है? बिंदी या टिप्पी? 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। वेरी गुड, 1 मींस बिंदी। फौजियां। और इधर लिखे मैंबर। मैंबर मैंबर नु ए दी मात्रा लगी है मैंबर ते की आएगी? 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। ए दी मात्रा नाल की आंदा है? दुलावा नाल की आंदा है? वेरी गुड, 1 फॉर बिंदी मैंबर। अगे आ गया पींग। पींग पींग हुंदा झूला, जेड़ा झूला असी बैठ के अगे पिछे हुंदे आ ना उसनु कहंदे पींग। पींग हुन दसो पींग पप्पे नु लगी है बिहारी ते की आएगी? टिप्पी या बिंदी? 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। 1, वेरी गुड, पींग बिंदी। अगला आंदा चौंकड़ा। गुरुद्वारे जा रहे हो चौंकड़ा मार के बैठना है। चौंकड़ा चौंकड़ा घनौड़ा आया चौंकड़ा। 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। घनौड़े नाल बिंदी आंदी है टिप्पी। वेरी गुड, बिंदी। उंगली उंगली फिंगर। 1 फॉर बिंदी 2 फॉर टिप्पी। ऊड़े नाल की रूल सीखिया सी? ऊड़े को कभी टिप्पी
नहीं लगती, तो ऊड़े को बिंदास आप बिंदी लगा दो। उंगली, उंगली। और क्यों, क्यों लगा दे बिंदी, क्यों? हम तो लगाएंगे बिंदी, क्यों पूछते रहो आप, जो मर्जी पूछते रहो, हम तो लगाएंगे बिंदी, क्योंकि रूल है ऊड़े का। ठीक है, असि देखो किन्ने सारे शब्द कर ले बिंदी और टिप्पी दे। समझ आ गई? चलो उन फटाफट अद्धक दे नियम कर लेंदे आ। ये मैं इरेज कर रहा। अद्धक दे नियम की हुंदे ने, पिछली क्लासेस विच ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं। अद्धक दे नियम हुंदे ने जदों आधा अक्षर का प्रयोग हो, जब आधे अक्षर का प्रयोग हो तब वहां पे अद्धक लगती है। ठीक है, पर आधा अक्षर तब प्रयोग हो जब उसी के साथ उसी का पूरा अक्षर हो। जैसे मैं लिख रहा, पहले इधर लिख लूं अद्धक, अद्धक के प्रयोग। जिवें मैं लिखा चित्त, या फिर मैं लिखा बिल्ली। ठीक है, या फिर मैं लिखा दिल्ली बिल्ली, कुछ भी लिख लिया, तो बाद में लिख लिया चिट्ठी। इसमें सारे नो हिंदी विच पहले लिख के देखेंगे ताई समझ आएगी। ठीक है, नुक्कड़, नुक्कड़, थप्पड़। हुण देखो जदों ਅਸੀਂ इसमें हिंदी विच लिखांगे तो सानू लिखना पेगा किवें, चित्त, आधा त भी लगेगा। बिल्ली कैसे लिखेंगे, बिल्ली। उस तो बाद लिखेंगे चिट्ठी, चिट्ठी के नीचे ऐसे आधा ट लगा देंगे, या फिर ट हलंत वाला। नुक्कड़ कैसे लिखेंगे, आधा क के साथ। थप्पड़ कैसे लिखेंगे, थप्पड़। इधर एक चीज बड़े ध्यान से नोट करने वाली है, क्या कि आधा अक्षर जो है वो पूरे अक्षर की लेफ्ट साइड आ रहा है। आधा अक्षर जो है वो पूरे अक्षर की लेफ्ट साइड आता है हमेशा, राइट। तो अद्धक भी जिस अक्षर को लगेगी उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, उसकी बाईं ओर यानी उसकी लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। चित्त में त की लेफ्ट साइड पे लगा आधा अक्षर, तो चित्त में त की लेफ्ट साइड पे अद्धक लगेगी, चित्त। बिल्ली में ल की लेफ्ट साइड पे लगे आधा ल, तो बिल्ली में ल की लेफ्ट साइड पे लगेगी अद्धक, बिल्ली। चिट्ठी में आधा ट लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे भी नुक्कड़ में आधा क लेफ्ट साइड लगा है, तो हम क के ऊपर ना लगा के न के ऊपर लग जाएगी अद्धक, क्योंकि क की लेफ्ट साइड पे लगानी है, ये याद रखना है बस आप। अद्धक कहाँ पे लगती है, शब्दों की बाईं ओर, लेफ्ट साइड पे। तो क आधा आना था पर हमने न के ऊपर अद्धक लगाई क्योंकि क की लेफ्ट साइड पे लगनी थी। ऐसे ही थप्पड़ में प आधा आ रहा है पर अद्धक लगेगी थ के ऊपर क्योंकि लेफ्ट साइड पे लगती है। इधर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, वो क्या चीज है, जिस चीज पे अद्धक लगती है वो आधा अक्षर, वही आधा अक्षर प्रयोग होना चाहिए जिसका पूरा अक्षर उसकी राइट साइड पे लिखा है। जैसे आधा त लगा तो आगे आधा पूरा त ही लगा होगा तभी अद्धक आएगी। आधा ल लगा है तो आगे पूरा ल लगा होगा तभी अद्धक आ सकती है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो आधा ट है पर आगे ठ है। ट और ठ, क और ख, च और छ, ये आपस में एक दूसरे की साउंड मिक्स होती है इनकी। जैसे मच्छर, आधा च आएगा पर उसके बाद छ लिखा है, तो ये भी साउंड रिलेटिंग साउंड है, तो यहाँ पे हम अद्धक लगा सकते हैं। नुक्कड़, आधा क है पर उसके बाद पूरा क ही लगा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं थप्पड़, आधा प है तो आगे पूरा प ही लगा है। ये होते हैं अद्धक के नियम। इसके अलावा अद्धक के बहुत सारे और शब्द हमने लेसन में करे हुए हैं, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप लेसन्स पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करें, लेटेस्ट अपडेट ना मिस हो, और होमवर्क टाइम से कंप्लीट करें। अगर फिर भी कोई डाउट है आप दोबारा वीडियो देखें,
मुझसे मांग ले वीडियो कैंप की वीडियो या होमवर्क की, तो मैं आपको रीसेंड कर दूंगा पर्सनली भी। बट अगर आप होमवर्क करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इससे रिलेटेड हमने अदक से और भी बहुत सारे शब्द अपने लेसन्स में करे हैं, इसमें होमवर्क में, तो आपने ये कर। अब मुझे कुछ डाउट्स भेजे थे किसी ने अदक से रिलेटेड, जिसमें आधा अक्षर था पर अदक नहीं लग रही थी। आप बता सकते हैं रीजन अदक क्यों नहीं लग रही थी? मैं बताता हूँ रीजन अदक क्यों नहीं लग रही थी। क्योंकि या तो वो आधा अक्षर स्टार्टिंग में था, अगर आधा अक्षर स्टार्टिंग में है तब अदक का प्रयोग नहीं होगा। जैसे प्याज, प्यार, ध्यान, इनमें ये देखो, प्यार, ध्यान, आधा अक्षर स्टार्टिंग में है। तो हमने तो अदक का नियम क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे लगती है। अब पहले अक्षर ही आधा है तो इसके लेफ्ट साइड पे कहा, हवा में लगाऊंगा अदक, तो यहाँ पे अदक नहीं लग सकती। डाउट क्लियर हो गया कि पहला अक्षर अगर आधा है तो वहां पे अदक नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे य बन जाता है छोटी ई और एड़ा, छोटी ई और एड़ा, ये प्यार ऐसे लिखा जाएगा, प्यार। ध्यान, वो भी छोटी ई और एड़ा बन जाएगा, ध्यान। दूसरा, अगर हमें आधा अक्षर आ रहा है बट वो आधा न या आधा म है तो वहां पे भी अदक नहीं लगती, वहां पे टिप्पी लगेगी। जैसे हम लिख रहे हैं मन, मन, ये लिखा मैंने मन, यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा न आ रहा है, तो अदक यहाँ पे नहीं लग सकती। ठीक है, यहाँ पे क्या लगनी चाहिए, यहाँ पे लगनी चाहिए टिप्पी। अब जैसे मैं लिखूं गन्ना, गन्ना लिखूं मैं, या फिर लिखूं मैं निम, निम, निम। आप देखेंगे कि यहाँ पे या तो आधा न है या आधा म है, आधा न और आधा म में अदक नहीं लगती। तो हम लिखेंगे मन, मम्मा नन्ना मन, गग्गा नन्ना कन्ना गन्ना, और नन्ना सिहारी मम्मा निम। अब हमने क्या रूल किया था, नन्ना के लेफ्ट साइड पे आधा न है तो न के लेफ्ट साइड पे अदक लगनी चाहिए, पर आधा न और आधा म के साथ अदक का प्रयोग नहीं होता, टिप्पी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम साथ में ही लिख लेंगे टिप्पी का प्रयोग। ठीक है, जहां पे आधा न और आधा म आता है वहां पे क्या होता है, टिप्पी का प्रयोग। अब टिप्पी भी लेफ्ट साइड पे ही लगेगी, ये है। और जैसे अभी हमने पढ़ा ही है कि सिहारी को टिप्पी लगती है, ओंकड़ दुलैंकड़ को टिप्पी लगती है, और मुक्ता को। मन, तो यहाँ पे ये रहा मन लिखा है, न आधा आना चाहिए तो न की लेफ्ट साइड पे टिप्पी लगा देंगे, यानी म के ऊपर टिप्पी ऐसे। गन्ना आधा न तो न की लेफ्ट साइड पे ग पे लग जाएगी टिप्पी। निम आधा म तो म की लेफ्ट साइड पे न पे लग जाएगी टिप्पी, निम। मुझे उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो फिर लेसन आप ध्यान से देखेंगे और लेसन में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अदक का लेसन ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको टिप्पी के नियम सिखाए गए हैं। ठीक है जी, अब देखें अदक का एक और नियम करेंगे, उसके बाद डाउट्स ले लेता हूं मैं। अदक का एक और नियम क्या है, अदक का नियम ये है कि अगर सेम अक्षर होगा तभी अदक आएगी। जैसे अगर मैंने लिख दिया अत्यंत, अत्यंत लिख दिया मैंने, आधा त आ रहा है बट आधा त के बाद पूरा अक्षर कौन सा है, य, तो यहाँ पे अदक आनी चाहिए। अदक तो आती है जहां पे आधा अक्षर के बाद उसी का पूरा अक्षर आए, तो यहाँ पे अदक नहीं आएगी, यहाँ पे अदक नहीं आ सकती। तो अत्यंत को कैसे लिखा जाएगा, अत्यंत को पंजाबी में ऐसे लिखेंगे अत्यंत। अभी मैंने बताया कि जो य है वो छोटी ई और एड़ा बन जाएगा, अत्यंत ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अदक नहीं आएगी। समझे, समझ में आ गई। तो अदक वहीं पे आएगी जहां पर
आधे अक्षर के बाद उसी का पूरा अक्षर प्रयोग हो, अदरवाइज अद्धक नहीं आएगी। चलो इट्स डाउट टाइम। अगर आपको ऐसे कोई और भी शब्द याद आ रहे हैं जिसमें आधे अक्षर के बाद पूरा अक्षर कुछ और है, तो वो भी मुझे बता दें, क्योंकि मेरे माइंड में अभी और कोई आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको और एग्जांपल्स बता देता। तो मोटी बात समझने वाली यही है कि आधे अक्षर के बाद अगर पूरा अक्षर उसी का रूप नहीं है तो वहां पे अद्धक नहीं यूज कर सकते। ठीक है, चलिए आइए अब डाउट सेशन। जिसको डाउट है अपने येलो हैंड रेज कर लीजिए, मैं उनको अनम्यूट की अलाउंस दूंगा, फिर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाउट ले रहे हैं युवराज सिंह सोंधी, जिनकी वीडियो ऑन होगी सिर्फ डाउट उन्हीं से लिया जाएगा। यस युवराज सर। सिंह सोंधी, हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी की फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, एज पर द यस्टरडेज लेसन आपने बताया था कि कि अ, सहिंदा जो ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ प्रोनाउंसिएशन ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦਾ होगा ਤੇ ए ਇਹ दी ਕੀ मात्रा बन ਹੁੰਦਾ है? जाएगी। अच्छा, हा दे नियम ने, हा दे कुछ नियम ने, 4 नियम ने हा दे। हा को अगर छोटी ई की साउंड आ रही है, ओ सॉरी, हा को अगर ए की साउंड आ रही है और हा को अगर ए की साउंड आ रही है, ये एक मिनट 4 नियम आपको लिखवा ही दूं। ये हा के नियम ने, बहुत अच्छा आपने पूछा, मैंने सोचा था कि क्लियर करूंगा फिर मैं भूल जाता हूँ। हा को अगर ए की मात्रा आ रही है और हा को अगर ए की मात्रा आ रही है। दूसरा, हा को अगर ओ की मात्रा आ रही है और हा को अगर ओ की मात्रा आ रही है, तब क्या रूल बन जाता है? हा के पहले शब्द को सिहारी लग जाएगी, यानी ह से जो पहला शब्द होगा, जैसे अगर मैंने लिखना है सहे, आपने रहंदा, आपने रहंदा बोला ना, यस सर। रहंदा हमने कैसे लिखा? ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। यस सर। इसमें रहंदा है, हा को हम कौन सी साउंड दे रहे हैं? रहंदा। जैसे मैं आपको एक और शब्द बोलूं मेहमान, तो मेहमान में हम ऐसे लिखते हैं मेहमान। सर, और इसमें ये हा वाणी में भी बहुत बार यूज होता है। इसमें यूज होता है, वाणी में। हाँ अच्छा शुक्र है। बानी में तो ये हा के बहुत अच्छे नियम है, ईडी के भी। ये जितने भी तीनों स्वर हैं, ऊड़ा एड़ा ईडी, इनके अपने नियम होते हैं। तो मैं इतनी डीप में जा नहीं रहा था कि कंफ्यूज ना हो जाओ आप सारे। जब हा को ए की मात्रा आएगी तो इससे पहले शब्द को छोटी ई लग जाएगी। जैसे जेहे, अगर मैं पढ़ रहा हूं जेहे, जेहे, तो साउंड तो आ रही है ऐसे, इसको पढ़ना चाहिए जेहे, है ना? यस तो सर। हा को तो आनी चाहिए ए की मात्रा, पर यहाँ पे लग गई ई, क्योंकि ये हा का नियम है कि उससे पहले शब्द को छोटी ई लग जाएगी। अब अगर मुझे पढ़ना है मेहमान, तो हा को छोटी ई लग जाएगी। ए की मात्रा है तो उससे पहले अक्षर को छोटी ई लगेगी, ए की मात्रा की साउंड है तो हा को ही छोटी ई लग जाएगी, हा को ही लग जाएगी यहाँ पे। जैसे मैं इसी को पढ़ूं, कह, ये मैंने लिखा है कह, कह, हा को आ रही है ए की मात्रा कह, पर हा को छोटी ई लगेगी, क्यों? ये हा के नियम है। ऐसे ही ओ और ओ में भी है। अगर मैं कह रहा हूं रहो, अगर ऐसे लिखा है ये शब्द लिखा है अगर, और अगर लिखा है अब मुझे इससे कोई शब्द ही नहीं बन रहा, गहो अगर लिखा है तो इसमें हा को आ रही है ओ की मात्रा, गहो, रहो, तो यहाँ पे ह को लग जाएगा छोटा ऊ। इसके मैं नियम आपको उस पर भी भेज दूंगा, क्योंकि अभी मुझे इससे रिलेटेड कोई शब्द ही नहीं याद आ रहे ऑन द स्पॉट। सर, रहा बट हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं, वो तो रहाओ। रहाओ तो हा के बाद आ गया ना ऊड़ा, तो यहाँ पे ह से पहले की बात रही है, ह को कौन सी साउंड आ रही है, ठीक है? सर। तो जब ह को आएगी ओ की साउंड तो ह को लग जाएगी ऊ की मात्रा, अगर ओ की साउंड आएगी तो ह से पहले शब्द को लग जाएगी छोटे ओ की मात्रा, ठीक है? ओके सर।
बस यही समझना है। अगर ह को आ रही है ओ की मात्रा, साउंड मात्रा नहीं, अगर ह को आ रही है ओ की साउंड, तो उससे पहले शब्द को कनौड़ होड़ा नहीं लगेगा, ओंकर लग जाएगा। ओके सर। और अगर ह को आ रही है ओ की साउंड, तो ह को लग जाएगा ओंकर। ये ह के 4 नियम है। इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मेरे को मैम ने भेजा था, तो मैं उनसे लेके आपको दोबारा भेज दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ह वेरी गुड क्वेश्चन। आपने सर को ही कंफ्यूज कर दिया, मुझे शब्द ही नहीं याद आ रहे, बट फिर भी याद आते तो मैं साथ साथ लिखूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चांस गोज टू, अगला डाउट हम ले रहे हैं बिशनप्रीत। बिशनप्रीत। यस सर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की का फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर आज आपने टिप्पी के नियम, टिप्पी और बिंदी के नियम करा रहे थे, आपने परीक्षा ली थी। उसके पहले शब्द जो पत्ता था सर, उसमें तो कन्ना आ रहा था, तो फिर उसमें टिप्पी क्यों लगेगी? कौन सा शब्द, आप दोबारा बोलिए। पत्ता में तो कहीं बिंदी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे, नेजल साउंड है ही नहीं पत्ता में। वो शब्द दोबारा देख के बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं आप। आप बताएंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि कौन सा शब्द था। बिशनप्रीत, बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और बताएं कौन सा शब्द था। सर मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था सर, पत्ता ही। पत्ता तो पत्ता। बेटा अद्धक है, पत्ता। पत्ता तो अद्धक है, इसमें तो बिंदी या टिप्पी का तो कोई काम ही नहीं है। आप कोई और शब्द बोल रहे होंगे जहाँ पे बिंदी या टिप्पी आई होगी। यस सर। तो अब मुझे नहीं पता आप कौन सा बोल रहे हैं, अगर आप जब तक बताएंगे तो मैं कैसे पता करूंगा। नेक्स्ट चांस गोज टू रमनप्रीत कौर। रमनप्रीत कौर। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर मैंने ए डाउट है कि अदक सिर्फ लेफ्ट साइड ही रख सकती है। यस, अद्धक सिर्फ लेफ्ट साइड लग सकती है। और जिस शब्द ਨੂੰ लगनी है उसका अद्धा अक्षर और पूरा अक्षर इको वर्ड ਵਿੱਚ होने, जिवें दिल्ली आधा ल और पूरा ल होंगे, प्रसन्न आधा न और पूरा न, यहाँ पे टिप्पी आएगी। संपन्न तो आधा म और पूरा म, यहाँ पे भी टिप्पी आएगी। चित आधा त और पूरा त, यहाँ पे अद्धक आएगी, क्योंकि आधा अक्षर और पूरा अक्षर एक साथ। ठीक है, और हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लगेगी। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट चांस गोज टू, जिस दी वीडियो ऑन है सर उन्होंने चांस मिलेगा, मैं दोबारा कह रहा। दीप सिंह। दीप सिंह। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर मुझे ये डाउट है कि सर जब ई की मात्रा होती है ना, हाँ, ईयर थर्ड होता है ना, उसमें राइट साइड ई की मात्रा हो तो ई गिनने का, या लेफ्ट साइड ई की मात्रा हो तो ई गिनने का। कोई शब्द बताएं, आप कोई शब्द बताएं, फिर मैं ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। जैसे कि रुको सोच के कहता हूँ। आप अपना माइक अनम्यूट ही रहने दें, उसको म्यूट मत कीजिएगा, और शब्द सोच लें इतनी देर, मैं किसी और के डाउट ले लेता हूँ। और जैसे ही आपको ओके याद आए तो मुझसे पूछ लेना, पर माइक म्यूट करोगे दोबारा अनम्यूट नहीं कर सकोगे, तो अनम्यूट ही रहो। ओके। तन्मित सिंह एंड नवलीन कौर जज। जज साहब, आप पूछ सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी माय सर लॉर्ड। सर मैंने एक डाउट है कि ओड़े दे नाल बिंदी क्यों लगा, टिप्पी क्यों नहीं लग सकती? ओ ਵਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? बेटा ये तो बिल्कुल व्यर्थ चीज हो गई ना पूछनी। रोटी जब मैं पूछ लांगी पानी कन्ना तो क्यों नहीं पी सकते, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟਿੱਪੀ 4 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 6 ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। ठीक है, हाँ जी थैंक यू सर। ठीक है जज साहब। हाँ जी थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। जगविंदर सिंह। जगविंदर सिंह। हरसीरत सिंह। हरसीरत सिंह।
टर्न ऑन योर माइक। मन में आधा न आता है, बेटा थोड़ा तेज। जब मन पे आधा न आता है न के साथ, तो उस पे वो टिप्पी लगती है। इस पे लगेगी, न पे लगेगी या म पे? देखें, इधर देखते हैं। मन हमने कैसे लिखा? मन लिखते हुए म आधा न और पूरा न। आधा न कहाँ पे आया? न की राइट साइड पे आया, लेफ्ट साइड पे आया? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे भी न की लेफ्ट साइड पे टिप्पी, यानी म के ऊपर टिप्पी लगेगी। गॉट इट? थैंक यू। नेक्स्ट चांस गोज टू आहुति चावला 10A29। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, एक डाउट कि लल्ले पैर बिंदी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसके कुछ शब्द बना। दीप चावला जो हैं अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि हमें फिर दीप सिंह, सॉरी एक मिनट, मैं दीप सिंह से पहले डाउट पूछ लेता हूँ। आहुति आप अपना माइक अनम्यूट ही रखिएगा प्लीज। दीप सिंह, हाँ जी बच्चे, आपको याद आया कोई वर्ड? सर मुझे शब्द तो याद नहीं आ रहा, पर मुझे इतना याद है कि है ना, लास्ट में ई होता है ना, राइट साइड की मात्रा गिनी जाती है कि लेफ्ट साइड की मात्रा गिनी जाती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, डाउट है क्या? लास्ट में ई होता है तो लेफ्ट साइड की मात्रा है, राइट साइड की मात्रा? डाउट भी तो क्लियर हो मुझे। मात्रा तो हम कहीं गिन ही नहीं रहे हैं। आपने देखा कभी सर गिन रहे हैं ये 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा? ऐसे तो कभी गिनी ही नहीं है। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जब भी शब्द याद आता है, ठीक है, तो आप तब पूछ लेना। ओके। हाँ जी, आहुति आप पे आते हैं। आपका क्या सवाल था, पूछिए। कह रही थी कि लल्ले पैर बिंदी और फफ्फे पैर बिंदी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उनके कुछ शब्द बता दो। अच्छा, प्रोनाउंस करना बहुत मजेदार है, क्योंकि मैं उर्दू भी सीख रहा था इंटरनेट से ही, तो मैं प्रोनाउंस करना सीख रहा था। थोड़ी सी जबान उनकी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, हमें बस आनी चाहिए। जैसे ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश का कुछ और है, अमेरिकन कुछ और है। हिंदी एक्सेंट हमारा कुछ और है, जो फिलीपाइंस में रह रहे हैं उनका कुछ और है। मलेशियंस का हिंदी एक्सेंट कुछ और होगा। अब ऐसे ही जो उर्दू जबान है, उसमें फफे और लल्ले को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? श ज को तो हमें प्रोनाउंस करना आ गया, क्योंकि वो स के पैर बिंदी है और ज के पैर, तो शशा और जज्जा। बचे ग, खखा, गग्गा, ला और फफा। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसके कुछ शब्द भी बना देता हूँ। ख से बनता है खत, ख ख, मुंह से बहुत सारी हवा आएगी, जैसे डेजर्ट कूलर बन जाएगा मुंह। खत नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे खत। अखबार, इसमें सिर्फ वही शब्द पढ़े जाएंगे जो या तो उर्दू जबान के हैं या फिर अरबी जबान के हैं, अरबी, फारसी और उर्दू। खत, अखबार, इन दोनों से एक शब्द बना देता हूँ, गजल, गजल। ठीक है जी, गजल। आप देखेंगे तीनों के नीचे बिंदी आ रही है, गजल। इसमें थोड़ी सी ह की साउंड आएगी, जो नीचे होता है ना बिंदी, ल, ग, ग, ख, ग, ल, फ। फ से हम बना सकते हैं फैज, फैज। फैज आपने हिंदी में तो वर्ड सुना ही नहीं होगा, है ना? उर्दू में तो उर्दू, अरबी, फारसी के जितने भी शब्द अगर हम पंजाबी भाषा में लिखना चाह रहे हैं, पंजाबी लिपि में, तब बिंदी लगेगी नीचे। ठीक है जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट चांस गोज टू जसवीर सिंह ग्रोवर। जसवीर सिंह ग्रोवर, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करके पूछना अंदर डाउट। सर हाँ जी वाहिगुरु। मैनू एक वर्ड दसना। हाँ? मैनू एक वर्ड दसना है। हाँ जी दसो ना बेटे, इसीलिए तो माइक अनम्यूट कराया। सर अधिक। अधिक, हिंदी में लिख रहा हूं मैं अधिक। ठीक है, हुन फिर मैं की करा हुन? इसनु पंजाबी विच किंज लिखना? सिंपल, ਐੜਾ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ अधिक। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ, अधिक यानी ਬਹੁਤਾ। ठीक है, अधिक जिवें पंजाबी लिखे इस तरह हिंदी ਵਿੱਚ लिख लांगे। ठीक है,
Okay, Virji. Thank you, Virji. Next chance goes to Iknoor Singh. Iknoor Singh. Sir, 1 minute. Praneet Kaur, your chance. Praneet Kaur. Praneet Kaur, I'm waiting. बेटा बोलो. ठीक है. नीतू अरोड़ा. नीतू अरोड़ा. हैंड रेज कर दिए, पता ही नहीं है कि सवाल पूछना भी है या नहीं, गायब ही हो गए हैं. समायरा घई, मैं देख रहा हूँ कि कोई तो ऑन करेगा. सर हाँ जी, हाँ जी भाई. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. सर मेरे को ये पूछना था कि वाहिगुरु के अंदर वाहिगुरु के ऊपर ई की मात्रा तो लगती है, एक ही मात्रा क्यों नहीं लगती? वेरी गुड. वाहिगुरु, वाहिगुरु ऐसे लिखा जाता है. हाँ जी, एंड कर रहे हैं. हाँ जी, वाहिगुरु ऐसे लिखा जाता है ना. ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਦੀ. ਹ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਦੀ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸੀ ਹ ਦੇ. ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ. तो गुरु ग्रंथ साहिब दी गुरबाणी ग्रामर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पंजाबी लैंग्वेज. तो वो गुरबाणी ग्रामर सीखने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਗੈरह ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ. Okay, so we are running out of time. Last doubt goes to नीतू अरोड़ा. माइक अनम्यूट हो गया. नीतू अरोड़ा, अगर आप सुन सकते हैं मुझे तो. वाहे खालसा वाहे फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी. वीर जी कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ या तो लेके एक रिलेटेड एक क्वेश्चन ਕੀਤਾ है WhatsApp ਤੇ. अच्छा ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਕਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਕਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪੜ ਲਾਂਗੇ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਕਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ. कोई शब्द दसो मेनू. ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਕਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਕਨ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੋਈ ਜਿਕਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. बिल्कुल. ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ ਤੇ ਲਾਂਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ या ਛੱਡ ਕੇ या अपन लिखना है तो अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਕਨ ਲੱਗੇਗਾ अपन ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ या ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ या ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ. या दो शेप ले सकता है. अगर य से वर्ड स्टार्ट हो रहा है जैसे यमुना, यमुना, तो फिर तो य ही आएगा, फिर य ही आएगा इस तरह य मु ना जी. बट यया अगर विच आ गया किसी दे, किसी शब्द दे विच आ गया तो वो दो भेद ले सकते, या तो ईड़ी और एड़ा, ओ सॉरी सिहारी और एड़ा, या फिर ईड़ी नु सिहारी और एड़ा. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਈਆ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ. ਇਹ ਯਈਆ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਮ ਔਰ ਅੱਧਾ ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਟਿੱਪੀ, ਕੀਤੇ ਨਾ ਰੂਲ. ਜੀ ਜੀ. ਇਹ ਅੱਧਾ ਮ ਔਰ ਅੱਧਾ ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਅੱਧਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਅੱਧਕ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਐੜਾ ਜਾਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਐੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਈਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਪਿਆ ਕੀਰਤਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਪਿਆ. ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਿਆ, ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਈਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜੀ. मैं उम्मीद करदा गल थोड़ी जी समझ आ गई होगी. जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर. शुक्र है वाहिगुरु जी. ठीक है जी. अच्छा. हाँ जी. सो बाकी सारियां दे जिन्ने भी डाउट्स ने इस नंबर ते तुसी पूछ सकदे हो, बट उस तो पहले मैं पूछांगा तुसी होमवर्क कंप्लीट कीता है या नहीं. सो आज दा होमवर्क कंप्लीट करांगे. कल दा पूरा दिन दिता है एंजॉय करन. सिर्फ एंजॉय नहीं करना, नाल नाल पुराने लेसन सारे रिवाइज करने हैं ताकि दो तखरी कंप्लीट हो जाए. और उस तो बाद असी जदों मंडे मिलिए दो तकरी दी हिंट देके एक दो सेंटेंसेस भी बनाने शुरू कर दिए. ठीक है जी.
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होएगी सानू समझ आएगी कि हम इंसान योनि में क्यों आए हैं भगवान से मिलने आए हैं तो 5 बार वाहिगुरु बोल के क्लास दी समाप्ति करते हैं डाउट्स तुसी इस नंबर ते पूछ सकते हो और होमवर्क कंप्लीट करते हैं जॉइन योर हैंड्स वाहेगुरु 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 सो मैं उम्मीद करता हूँ 5-6 मिनट बैठ के हम अभ्यास करेंगे रोज वाहिगुरु सिमरन का जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं वो नाम जपेंगे ओम अल्लाहु वाहिगुरु गॉड लोगोस जिस भी नाम में हमारी श्रद्धा है 5 मिनट जरूर बैठ के अभ्यास करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे आज ग्रुप में कुछ रूल्स आएंगे जैसे हाहा के रूल्स आएंगे मुहारनी आएगी अद्दक के टिप्पी बिंदी के रूल्स वो ध्यान से देखने हैं और कल संडे सारा कुछ रिवाइज करना है मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा और यूट्यूब पे भी देखेंगे तो इसी उम्मीद के साथ हम मंडे मिलेंगे अब नए जोश और नए लेसन के साथ आइए फतेह बुला के लेसन को समाप्ति दें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।